Good morning, dear students. Today we are starting Unit 2. In BSc second part, we are starting Unit 4, that is colorimetry and spectrophotometry. Now, when we say colorimetry and spectrophotometry, this is nothing but these are a number of analytical methods. These are a kind of analytical methods which are based on the absorption of radiation. Absorption of radiation means when the rays are coming, that how much rays are absorbed, how they work, that all comes under this concepts. So these are nothing but they are served as a very good tool for structural elucidation of various chemicals. Okay, again, now when we say this colorimetry and spectrophotometry, so first we should know how it works, what this concept means, why this is necessary, what is the significance of this or these two concepts or these analytical methods. Now before that we should know about the absorption of light. When we say a light, the light is when a light is suppose just take this example. Just see, this is a transparent container or a test tube which is containing a solution. Okay, so solution is having number of particles. Now when the light is incident on it, okay, when the light is incident on it, what will happen? Some of the light part enters inside the test tube, मतलब उसकी जो light rays हैं कुछ part absorb हो जाएंगी. So it is IA. Okay, I means incident light or intensity of light. Okay, now this incident light which is absorbed, I have denoted by IA. The light which is falling on or incident, it is I or I0, you can or IO or I0, you can read as if. Okay, now some of the part will be absorbed, some of the part will bounce back. Bounce back means it will touch the container and it will come back, so that is reflected part, so I am denoting it by IR. Now some of the portion which is not absorbed, that will go through the container or the test tube, that is transmitted ray. Okay, that part is called as transmitted radiation, so it is IT. So in this way, when we say the intensity of incident light, this intensity of incident light is consisting of three parts: IR plus IA plus IT. So these are the three parts. Now if we are using any quartz glass or the glass in which this reflected ray portion is negligible, okay, or to the minimum, then you can say that the incident light is consisting of mainly two parts, IA and IT. Okay, that means when a beam of light, this is nothing but a beam of light, ये rays हैं. rays means जो रोशनी है, सन रेज होंगी या डिफरेंट नेचुरल आर्टिफिशियल रेज होंगी, रेडिएशंस होंगी, उनकी जो लाइट से जो रोशनी फैलती है, तो वो रेज फॉर्म में या रेडिएशन फॉर्म में हर जगह फैलती हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या कह रहे हैं? रेडिएशंस या रेज कहेंगे. उसकी एक रे, मतलब उसको हम क्या कहेंगे? शार्प बीम, यानी बीम, BEAM. ओके, सो ये हम बीम के फॉर्म में दिखाएंगे कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, ये जो उसका एक पोर्शन है, यू कैन से इट एज अ पोर्शन. ओके, सो अ पोर्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू एनी एब्जॉर्बिंग मीडियम, मतलब हमने यहाँ जैसे ग्लास ले लिया जिसमें आराम से लाइट जा सकती है, उसमें कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो सकता है. तो इस तरह के अगर हम एब्जॉर्बिंग मीडियम लेते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, दिस कंसेप्ट. नाउ on this basis we have two laws. The first law is Lambert's law and the other's law is Beer's law. So first we are going to see the Lambert's law. Now what is its statement?
this Lambert law is talking about the thickness of the or the depth of the light absorbing species. ठीक है, उस पर्टिकुलर जो सोर्स है हमारा जिसमें से लाइट एब्जॉर्ब होने वाली है या पास होने वाली है, उस सोर्स की थिकनेस कितनी है, उसका और जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस लाइट का, उसकी एक्सटेंट, इन दोनों में ये रिलेशन जो दिखाता है वो दिखाया था लैम्बर्ट ने. ओके, तो व्हाट डज इट सेज? लैम्बर्ट सेज that when a beam of monochromatic light is allowed to pass through a transparent, ये जैसे ग्लास मीडियम है तो ये ट्रांसपेरेंट है, and it is allowed to pass through a transparent homogeneous medium. Homogeneous means everywhere it is symmetrical. So homogeneous medium, the rate of decrease of intensity. Now here the main part starts. Now decrease of intensity means we will make it as di, ठीक है, and it is rate is always measured with thickness or time. Okay, so that rate we are saying the rate of decrease of intensity with thickness. तो ये जो t है ये thickness को बता रहा है और ये I है ये intensity है. So rate of decrease of intensity with thickness of the absorbing medium is directly proportional to intensity of incident light. जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उससे कौन प्रोपोर्शनल है? ये d जो है, ये स्मॉल d, ये क्या बता रहा है? डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज बता रहा है. किन दो टर्म्स का? इंटेंसिटी का, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विथ थिकनेस. ये जो रेशियो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. मतलब ये अगर रेशियो बढ़ता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, नाउ इट इज़ अ डिक्रीज, तो आपको यहाँ माइनस साइन लगाना ज़रूरी है. नाउ वी विल गो फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज़ मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, so this comes the statement in mathematical expression. Okay, and now this negative sign is what it is indicating? It is indicating the decrease in thickness of the medium. Okay, now if we have to remove this proportionality sign, we can put a constant here. Everyone is knowing about the mathematical rule. Okay, so what we are going to do, di by dt, एंड वी विल पुट अ कॉन्स्टेंट. यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे. सपोज आई हैव यूज्ड k1 और ये इंटेंसिटी i. सो ये जो k1 है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. i क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट. t क्या है? थिकनेस ऑफ द मीडियम. थिकनेस ऑफ द मीडियम जिसमें से ये लाइट एब्जॉर्ब हो रही है. ओके, नाउ वी विल स्क्रम्बल इट, मतलब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे अगर इसमें, तो व्हाट विल हैपन? आई वाले टर्म हम इधर लेते हैं तो डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू, और यहाँ k1 ऑलरेडी है, ये dt इधर शिफ्ट कर दो तो इट विल बिकम लाइक दिस. ओके, नाउ बाय इंटीग्रेशन मेथड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. अब हम क्या करेंगे? यहाँ डी आई बाई आई आ गया है तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट. ओके, वी विल यूज़ द इंटीग्रेशन मेथड. उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ चीज़ें, जैसे आई ज़ीरो है वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है. जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी है. ठीक है, आई टी क्या होगा? जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है दैट इज़, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द मीडियम. जब वो मीडियम से चली जाएगी दैट इज़ आई टी. और मीडियम का थिकनेस क्या है? टी है. तो डी टी के लिए भी हमें इंटीग्रेशन लगेगा. तो जब हम लिमिट डिसाइड करेंगे, जब हम आई ज़ीरो से आई टी की तरफ जाएंगे, मतलब इतनी इंटेंसिटी फॉल ऑन होगी या क्रॉस होगी, दैट टाइम थिकनेस क्या होगा? टी ज़ीरो से टी की तरफ जाएगा. थिकनेस विल वेरी. पहले थिकनेस क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा एंड देन इट विल गो टू टी. ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेट. हियर ओनली आई विल शो दैट पार्ट. नाउ इंटीग्रेटिंग. आफ्टर इंटीग्रेटिंग व्हाट विल हैपन? वी विल पुट अ इंटीग्रेशन साइन. या माइनस साइन बाहर निकाल लो. डी आई बाय आई इज इक्वल्स टू, यहाँ k1 कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट को बाहर रखो, इंटीग्रेशन dt. अब आप लिमिट्स लगा लो.
आई के लिए लिमिट्स हमने क्या डिसाइड किया, मिनिमम से I0 से IT, और यहाँ क्या है 0 से T. नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट आर द रूल्स फॉर इट? रूल इज ln ऑफ I, है ना, ये लॉग हो गया, लॉग ऑफ I. लॉग ऑफ I की लिमिट्स क्या है, I0 से IT, और K1 यहाँ वैसा का वैसा रहेगा. ये जो dt है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, T. ठीक है, T के लिए भी लिमिट है 0 से T. आप डायरेक्ट स्टेप अप भी कर सकते हो. यू कैन शिफ्ट टू द, यू कैन स्किप दिस स्टेप एंड यू कैन गो फॉर दिस डायरेक्ट स्टेप, दैट इज ln. ये नेगेटिव साइन यहाँ ऑलरेडी है, तो I0 बाय, यहाँ I0 नहीं, ओके, IT बाय I0, ये माइनस साइन है यहाँ, और यहाँ I1 ये हो गया T. ओके, T माइनस T0 ऐसा आता है. ओके, नाउ ये जो नेगेटिव साइन है वी विल शिफ्ट हियर, सो ln ऑफ IT बाय I0 दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ IT इंटू T. Now if we have to remove the log ln, if we have to remove the log, then what is the next step? There is a simple formula for it. आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हो, IT बाय I0, और यहाँ log अगर आप हटा दे रहे हो नेचुरल log, तो यहाँ e आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, और ये पावर में चले जाएंगे. इफ़ यू नो द इंटीग्रेशन रूल्स, log rules, you can easily understand these concepts. These are 11th 12th concepts for mathematics. Okay, so in this way this is the required one. Now again you can simplify it. ये जो e है अगर आप उसको log के टर्म में शिफ्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, अब एक्सपोनेंशियल को आपको 10 के पावर में करना है, तो वहाँ 2.303 वाला कंसेप्ट आ जाएगा. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, IT इज इक्वल्स टू I0 को इधर शिफ्ट कर दो, I0 e टू द पावर माइनस K1T. अगर आपको e नहीं रखना तो लिख दो I0 यहाँ 10 टू द पावर माइनस, यहाँ दूसरा कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि ये जो K1 है, K1 की जगह आपको 2.303 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई उस वहाँ जो है उसको डिविजन प्रोसेस होने की वजह से वहाँ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो नेचुरली ये यहाँ आपको दूसरा कांस्टेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा. तो फर्स्ट लॉ दैट इज़ लैम्बर्ट लॉ, जो कभी कभी डिराइव करने के लिए आता है. अगर MCQ आएंगे तो MCQ में इस तरह के रिलेशंस दिए जा सकते हैं. दे मे आस्क यू फॉर द फाइनल relation, they can ask you for the significance of any of these terms, that whether IT, I0 or IA, like that. So in this way you have to keep every step in mind, what is the logic behind it and what is the significance of it. Okay, thank you and have a nice day.